Good morning, everyone. Am I audible? Okay. So I think we were doing exercise 3.3 in the last class, right? Till what have we done? Okay, till question number 11. Question number 1 का 11 ना? Okay. So let us start. This is 13th lecture of integration. So we are continuing exercise 3.3. Question number 1. 12th question now in the class. Okay. All of you solve along with me. I is equal to integration of x square into cos inverse x. Is the arrangement of UV is accurate here, or do I need to change it? What do you say? Yes, we need to change because this is inverse, this is algebraic. LIA, I comes first, right? So here I will write cos inverse x into x square dx. And now I will simply apply UV rule here, right? So आई एम डूइंग इट डायरेक्ट यूवी रूल, थोड़ा अभी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए डायरेक्ट करने की। जिसको नहीं है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं भी पहला समय तो स्टेप बाय स्टेप ही करता हूँ। यू कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos inverse x. Now this is cos inverse x as it is. X square का integration is x raised to 3 by 3 minus integration of x square का integration x raised to 3 by 3 into cos inverse x का derivative, तो वो होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो लिखते हैं with respect to x. Have you all understood up till here? सबको समझ में आया? Now in this bracket you can see minus can be taken common, 1 upon 3 can be taken common. So minus 1 upon 3 common ले लिया। तो ये फर्स्ट टर्म तो as it is बचेगा x cube by 3 into cos inverse x. This minus minus becomes plus 1 by 3, right? तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, numerator is x cube, denominator is root of 1 minus x square. Now since we are in the second last exercise of integration,
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े। मुझे बताओ अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, प्लीज लेट मी नो। How will you get the integration of this? I'm calling this as 1 . मैं उसको अलग से I1 कंसीडर करूंगा। कैसे करेंगे? Yeah, you can see here, you can bring x square term in the numerator. Many are saying the same thing, like x square into x upon root of 1 minus x square, and then we can substitute x square की जगह या तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह, क्योंकि रूट वाला ट्रबल कर रहा है तो पूरे रूट के अंदर जो है उसको ही पुट कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर गया, टी इधर गया, तो आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 1 माइनस टी। फिर नॉर्मली तो हम जब भी पुट करते तो डिफरेंशिएट करते, तो 1 का डेरिवेटिव 0, दिस इज माइनस 2x dx is dt. I have x and dx, so I will keep x dx here, minus 2 transferred that side, 1 upon minus 2 dt हो जाएगा, राइट। अब इन सबको हम I1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, so therefore I1 is equal to x square, 1 minus x square is t, x square की जगह क्या लिखेंगे, 1 minus t, so this is 1 minus t अपॉन रूट टी हो गया बच्चों, और x और dx ये दोनों मिलकर, ठीक है, क्या बना देंगे, 1 upon minus 2 dt. And now this becomes a very simple problem. ये root t can be separated to 1 and t also. So this will become, ये 1 upon minus 2 को बाहर ले लिया, 1 upon root t हो जाएगा, root t मतलब t raised to half, minus t upon root t हो जाएगा, पहले रूट टू ही रखो, चलो बाद में ऊपर लेके जाएंगे तो कर लेंगे, ठीक है। अभी हम सबको मालूम है कि t अपॉन रूट टी, तो t के अंदर 2 रूट टी होता है, एक रूट टी कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास जो बच जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा t रेज टू माइनस हाफ, और दूसरा टर्म ओनली रूट टी बचेगा, मतलब t रेज टू हाफ बचेगा। डू यू ऑल एग्री दिस पॉइंट? सबको समझ में आना? Yes. And now you will simply integrate them. So 1 upon minus 2 is still out. T raised to minus half plus 1 is t raised to half. So t raised to half upon half. And this becomes t raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. Now this is 1 upon minus 2. ये 1 upon 2 2 ऊपर जाएगा तो 2t raised to half हो जाएगा, और ये 2 by 3 t raised to 3 by 2 हो जाएगा प्लस c। इस 1 अपॉन माइनस 2 को अंदर लिया तो पहले टर्म में 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव t रेज टू हाफ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 कैंसिल,
1/3 टी रेस टू 3/2। अब चाहिए तो टी रेस टू हाफ को √2 लिख दो एंड टी रेस टू 3/2 को टी√t लिख दो, अप टू यू। ओके, एटलीस्ट टी रेस टू हाफ की जगह तो हम रूट लिख ही सकते हैं। तो ये मेरा नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट 2 इन 1, राइट। ऑलरेडी आई हमने निकाल के रखा था, इसका फर्स्ट टर्म था x³/3 cos इनवर्स x, और कुछ कांस्टेंट भी साथ में था, वो देख लेते हैं क्या था। हाँ, 1/3 इंटू जो भी आया वो, यानी ये जो आया है इसके अंदर भी 1/3 का मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो प्लस की माइनस नहीं होगा, +1/3। ओके, सो इट्स +1/3 इंटू माइनस √t लिख देता हूँ, +1/3 t⁻³ प्लस, नाउ जस्ट 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, t की जगह t का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x³/3 cos इनवर्स x minus 1/3 √t, right? T is what? 1 minus x square minus, sorry, plus 1/3 1/3 1/9 into t क्या है, 1 minus x square है, तो 1 minus x square raised to 3/2 plus c। तो ये जो आपको आया है, दिस इज योर फाइनल आंसर। Have you all understood how we did this problem? अगर कहीं छूट गया होगा, नहीं लिखा होगा, so please start writing this. Let me know if you want me to scroll it down.
Okay students, I hope everyone have done it. So we'll go ahead to the next question now. Question number 30. मेरे साथ साथ करने का हैबिट करो बच्चों, ठीक है? अभी तो क्या आपके लिए नया नहीं है ना ये, तो you can understand and write along with me. Now in this question you can see 13th one, integration of log x upon x. दिखने से लगता है क्या करने वाले हम लोग, अगर मैं log x की जगह t पुट कर दूं तो ये 1 upon x dx dt एडजस्ट हो जाएगा, isn't it बच्चों? So I will put log x as t. So differentiating with respect to x, we will get 1 upon x here dx equal to dt. ऑलरेडी ऐसा बहुत सारे सम हमने किया है, तो ये अपॉन एक्स और डी एक्स मिलकर डी टी हो जाएगा, तो हमारे पास आई क्या बचेगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स को टी पुट किया, तो ये सिंपली लॉग टी हो जाएगा, और जो 1 अपॉन एक्स डी एक्स है वो डी टी हो जाएगा। तो ये सिंपल लॉग टी का प्रॉब्लम आ गया। मैंने ऑलरेडी बताया है, सिंगल लॉग एक्स रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है आपको, सो लॉग टी इंटू 1 एज्यूम करना है और u भी लगाना है, राइट? चलो इसका u भी क्या होगा देखते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, u कॉमन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1t विद रिस्पेक्ट टू t है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू t होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन t एंड log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t। हेलो, यस, अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ये वाला समझा स्टेप, log t कॉमन, t का 1 का इंटीग्रेशन t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन t और log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t, राइट? तो अभी आप देखो दो लाइन में आंसर हो गया, ये तो हो गया t log t, और यहाँ पर ये t कैंसिल तो बचेगा 1। अभी 1 का इंटीग्रेशन तो वी ऑलरेडी नो इट्स t, दिस बिकम्स t log t minus t plus c, हो गया आंसर आपका। Now you have to just substitute back, that's all. Okay, you can take t common also if you want, t common लेंगे तो बचेगा log t minus 1 plus c. Now substitute t की जगह log x, तो log x ब्रैकेट में log of log x minus 1 plus c, ये आंसर है आपका। Have you all understood? Very easy problem, correct? Please let me know if it is completed, बच्चों। Okay, I hope everyone done this. Okay. Now few more questions are there, वो भी ऐसे substitution वाले ही हैं। अभी बच्चों मैं थोड़े थोड़े कुछ questions में hint दूंगा, I will not be solving everything because now I think आप लोग
यूवी रूल अप्लाई करना आप समझ गए कैसे करना है, करेक्ट। सो 14th वन, I is equal to integration of P into sin inverse T upon root of 1 minus T square. हिंट भी देने की जरूरत है, it's so clear that I can put what? Yes, sin inverse T as, अभी बच्चों देखो ये ऑलरेडी क्वेश्चन ही टी में है, तो हम इसको टी नहीं एज्यूम करेंगे ना, कुछ और एज्यूम करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन ही टी के अंदर है। सो सपोज हमने थीटा एज्यूम किया, ठीक है, फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन इनवर्स का होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी थीटा। तो इसका मतलब ये पूरा डी टी और ये रिप्लेस हो जाएगा डी थीटा से। अच्छा, यहाँ से हमको टी भी निकालना पड़ेगा, टी होगा साइन इनवर्स उधर गया साइन थीटा। सो अगर फाइनली मैं आई के अंदर ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करूँ बच्चों, सो माय क्वेश्चन आई विल बिकम टी, टी इज साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिए, इनटू साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी तो थीटा है, थीटा लिख दिए, एंड डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी थीटा हो गया। सो डोंट यू थिंक ये तो प्रॉपर अलजेब्रा लाइक यूवी रूल जैसा अरेंज हो गया बच्चों। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है या अलजेब्रिक है, तो एल आई ए टी, ए पहले आता है, तो थीटा को पहले लिखेंगे और फिर साइन थीटा को, और फिर इसमें यूवी लगा के सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है ना बच्चों। कैन यू मैनेज दिस एज होमवर्क? ओके, सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ नॉट रिटन। तो थोड़ा हम लोग फास्ट फास्ट आगे के भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो क्या मतलब है ना मुझे करने का, आपको आना चाहिए। चलो 15th वन, I is equal to integration of cos of root x। अब देखो यहाँ पर सिंगल टर्म है cos रूट x। मुझे पहले ये बताओ बच्चों कि क्या मैं इसके अंदर cos x का फॉर्मूला लगा सकता हूँ इंटीग्रेशन का? Yes or no? Because this question looks very simple, right? Can we apply cos x का फॉर्मूला here? Please reply. cos x का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है sin x होता है। Those who are saying no, why can't we apply? Rahul Lambre saying yes, Anurag saying yes, Bimlesh saying yes. Wow. So we are into the second last exercise of integration, and we even don't know the basic formula of cos x. आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। ये वाला फॉर्मूला तब तक हम अप्लाई कर सकते हैं अगर x is replaced by linear equation in one variable। याद आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x के जगह ax प्लस b रहेगा, तो हम लिख सकते हैं cos का साइन, तो साइन ax प्लस b डिवाइड बाई a प्लस c। जो डू वी हैव लीनियर एंगल हियर? रूट एक्स क्या लीनियर है क्या? नहीं है ना, एक्स रेस टू हाफ है, लीनियर मतलब एक्स का पावर 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, जिसने यस बोला समझ में आया? हाँ, तो क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करने के लिए हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। देखो क्या कर रहा हूँ मैं पुट करूंगा ये जो रूट एक्स है उसको टी, ठीक है, तो इससे आपको मिलेगा x इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड नाउ I will differentiate
विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, इधर dx आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2t dt। तो dx जहां भी है उसको 2t dt लिखिए, रूट एक्स की जगह t। देखो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, cos, ये तो t हो गया और dx की जगह लिखा 2t dt। अब आपको नहीं लगता ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया? यस, 2 को चाहिए तो बाहर लिखो या t के साथ रखो, तो 2t मेरा u हो गया और cos t मेरा v हो गया, और मैं अभी इसके अंदर uv रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ एंड आई कैन गेट द फाइनल आंसर। यस एवरीवन, सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं, इससे लेंदी सम और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सब लोग ने किया हुआ है, ठीक है। दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, हिंट ले लिया तो समझ में आ गया। समझ में आया? मूविंग है द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th वन। ये तो और भी सिंपल है, देखने से ही लग रहा है। साइन थीटा इनटू, जल्दी बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करूं? यस, आई विल सिंपली पुट cos थीटा के जगह t, हाँ थीटा है, डिफरेंशिएट करूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन डी थीटा इज डी टी, माइनस तो है नहीं, माइनस एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये साइन थीटा और ये डी थीटा मिलकर माइनस डी टी हो जाएंगे, और ये लॉग टी हो गया ना। तो मेरा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ log t इंटू माइनस डी टी, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, log t को ऐसे ही रखूंगा, इंटू 1 करूंगा ना, अभी तो किया था 1, पर ये माइनस है इसलिए मैं -1 कर देता हूँ। आप बोलोगे सर माइनस बाहर भी ले सकते हैं, ले सकते हो, बट क्या है देखो, इंटीग्रेशन यू भी ऑलरेडी बड़ा होता है, फिर उसके आगे कुछ बाहर कॉमन लोगे और वो भूल गए अंदर मल्टीप्लाई करना, उससे अच्छा उसको ही -1 ही ले लो ना, समझ रहे हो क्या? इसलिए यहाँ पर भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने 2t को साथ में ले लिया, क्योंकि 2 को बाहर ले सकता हूँ, बट 2 को हमको कैरी करना पड़ेगा ना हर स्टेप में, और लास्ट स्टेप में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 2t को ही साथ में ले लिया, तो प्रॉब्लम ही नहीं। ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ऑलरेडी log t इंटू 1 हमने किया है, तो log t इंटू -1 इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, करेक्ट बच्चों? Okay, so this is one more problem which you can take it as homework. Now the next one, problem number 17. ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos क्यूब x dx। ओके, ना हम सबको मालूम है uv तो दिख रहा है, बट cos क्यूब का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्या बच्चों? हमने एकदम बेसिक लेक्चर में पढ़ा था cos क्यूब का इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे, यू रिमेम्बर? और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो a पहला आएगा, e बाद में। तो हम क्या करते हैं, कल इस cos क्यूब को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो हम सबको मालूम है हमने यूज किया था cos 3 थीटा का फॉर्मूला। cos 3x क्या होता है, का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये इधर भेजा तो 4 cos क्यूब x मिलेगा, cos 3x ये इधर गया, प्लस 3 cos x, और फिर 4 जाके वहां डिवाइड करेगा, तो cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4।
राइट। तो ये कॉस क्यूब हो गया और इसका इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यूवी लगाने के टाइम इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, उससे अच्छा मैं इसका अलग से इंटीग्रेशन ही निकाल लेता हूँ ना। क्या बोलते हैं आप लोग? यस। तो मैं क्या करूंगा, आई से कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब मतलब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, वो कॉमन हो गया। अभी cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x डिवाइड बाई 3, 3 कांस्टेंट है कॉमन, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? cos क्यूब का इंटीग्रेशन समझ में आया? हाँ, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो। ये क्यों कर लिया, अब ऊपर जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो डायरेक्ट ये सब्स्टिट्यूट ही कर दूंगा ना मैं, टेंशन नहीं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x and now I will consider my question now। क्वेश्चन क्या था, x into cos cube। तो ध्यान से देखो। So now I equal to integration of x into cos cube। Okay, so let us apply UV rule here। So x common, integration of cos cube minus integration of cos cube into derivative of x dx। Now this is x into cos cube का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, sin 3x upon 12 plus 3/4 sin x। I hope everyone is with me, समझ में आ रहा है आप लोगों को? cos cube का इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाल के रखा है, sin 3x upon 12 plus 3/4 sin x into डेरिवेटिव ऑफ x 1, टेंशन ही नहीं, dx। अब ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है बच्चों, है कि नहीं? फर्स्ट वाला पार्ट तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, so I have to just multiply x inside, so it will be like x sin 3x upon 12 plus 3x sin x upon 4 minus, मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, क्योंकि 1 into this will be the same ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो, तो पहले 1/12 बाहर, sin 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x एंड डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट, करेक्ट। अब माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस और प्लस पहले माइनस हो जाएगा, करेक्ट, -3/4 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x। सबको समझा ये माइनस का एडजस्टमेंट, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, एवरीबॉडी प्लस सी। हाँ, तो अभी हम देखेंगे, तो आई थिंक ये भी 12 4 4, ये भी 4 12 3 का 36 हो जाएगा। आई थिंक 1/4 इज कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, सो आई कैन टेक 1/4 कॉमन। तो इधर क्या बचेगा, x/3, 4 3 है ना, x/3 sin 3x बचेगा, इधर तो गया 4, तो 3x sin x बचेगा, करेक्ट। इधर से 4 गया तो 4 3 तो 3 3 9 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/9 cos 3x होएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस 4 गया तो 3 cos x होगा एंड प्लस c होगा। यही आपका फाइनल आंसर है बच्चों। एवरीवन अंडरस्टूड? थोड़ा सा ये डिफरेंट प्रॉब्लम हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट cos क्यूब, डिफरेंट नहीं है, बस हमने उसका इंटीग्रेशन अब देखो पहले से निकाल लिया तो कितना इजी हो गया ना, नहीं तो यहाँ पर वो पूरा कैलकुलेशन करना कितना टीडियस होता है और मिस्टेक भी होने का चांसेस था, करेक्ट। चलो ये प्रॉब्लम को अच्छे से नोट कर लो, नोट दिस प्रॉब्लम, स्टार्ट से लिखो।
Let me know when you want me to scroll it down. Okay, I hope everyone understood this and have completed this one. Okay, so moving ahead to the next question, 18th one. Okay, now question 18 looks very simple. I is equal to integration of sine of log of x the whole square whole upon x dx, राइट? क्या लगता है क्या पुट करोगे बच्चों आप? देखो अगर आपने log x को t पुट किया तो साइन टी स्क्वायर आएगा, बट साइन टी स्क्वायर में आप साइन का फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते ना, क्योंकि साइन टी स्क्वायर आ गया, साइन का एंगल लीनियर होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक आ गया, पावर 2 आ गया। सो बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि हम log x का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे t, ठीक है? log x का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। अच्छा, सेकेंडली मैंने थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है, क्वेश्चन में इनटू log x भी है ना, वो भी आपको हिंट देगा कि अगर इसका डेरिवेटिव में log x भी आएगा और 1/x भी आएगा। So now if you differentiate this with respect to x, you will first apply x raised to n, वो होगा 2 log x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, dx is dt।
ओके तो फिर अभी log x अपॉन x तो है अपने पास, तो ये log x, ये x और ये dx हम रिप्लेस कर देंगे, ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 कैन बी ट्रांसफर दैट साइड, सो log x अपॉन x dx कैन बी रिटन एज 1/2 dt. okay, so therefore I is equal to, ये हो जाएगा sin t, और बाकी तो सब पूरा क्या हो गया, dt हो गया बच्चे, 1/2 dt हो गया. अभी तो सिंपल हो गया ना, 1/2 बाहर, ओनली sin t बचा, इसमें तो u भी नहीं बचा, और sin t का तो इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है, माइनस कॉस टी. हेलो, समझ में आया आप लोगों को? प्लस सी, एंड नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट t के जगह जो हमने एज्यूम किया था, log of x the whole square. यही आपका फाइनल आंसर. समझा सबको? प्लीज कंप्लीट दिस. मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है. So I think this is very simple बच्चों, noted. Okay. Next question, 19th one. जल्दी से बोलो, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? हाँ, मेरे लिखने के पहले नहीं बोला आप लोगों ने अभी तक. log x एस टी, सिंपल. डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx dt हो जाएगा. तो आपका क्वेश्चन बन गया 1/x dx dt हो गया, log x की जगह t. तो अब ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया ना, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2. हो गया आंसर. t की जगह बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो हो जाएगा log x द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. डन. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन. I is equal to integration of x into sin 2x into cos 5x dx. करेक्ट. नाउ यहाँ पर तो UVW आ गया बच्चों, हमने तो UV रूल पढ़ा, और ऐसा UVW कुछ होता भी नहीं है, ठीक है. देन व्हाट विल यू डू? तो आपको इस sin 2x और cos 5x को देखकर क्लिक होना चाहिए कि this looks like what I can say is a defactorization formula. Are you able to recall this defactorization? Yes. हाँ? तो देखो, अगर मैंने क्या किया, इसको u समझा और इस पूरे को v, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, राइट. तो जैसे मैंने वो cos क्यूब वाला किया था ना, अलग से उसको सॉल्व करके फिर उसका इंटीग्रेट निकाल लिया, I can plan like that only for this question also. How? See, consider
sin 2x into cos 5x। इफ यू रिकॉल बच्चों, फॉर्मूला जो डिफैक्टराइजेशन का था उसमें 2 टाइम्स था, राइट? मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट नाउ आई कैन अप्लाई 2 sin a cos b का फॉर्मूला। चलो ऑल ऑफ यू अप्लाई द फॉर्मूला और मुझे सॉल्व करने के बाद प्लस में या माइनस में क्या आएगा वो मुझे बताओ, एवरीबॉडी। यस डन, एक ही स्टेप में करना था। टू साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस या साइन ए माइनस बी, so this will become sin a plus b plus sin a minus b। Now this is simply sin 7x, this is minus 3x, but sin का जब माइनस एंगल होता है that comes out। सबको समझा यहाँ तक? sin of minus 3x I have directly written as minus sin 3x। ओके, सो ये हमको ये मिल गया। अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं इधर ही निकाल लेता हूँ ना इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 5x, इसका इंटीग्रेशन करेक्ट। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 7x डिवाइड बाई 7, ठीक है। साइन 3x का माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3 प्लस t। बस अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 का, तो माइनस 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/6 cos 3x। सबको समझा? and now I will consider I क्या था अपने पास, x into this, x into sin 2x cos 5x। तो ये पूरा u है, ये पूरा v है और ये dx है, करेक्ट। एंड नाउ लेट्स सी, uv रूल अप्लाई करो तो क्या होगा, x कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस sin 2x cos 5x minus integration of sin 2x cos 5x into डेरिवेटिव ऑफ x। अब ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन तो हमने निकाल के रखा है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन के साथ और ये वाला इंटीग्रेशन के साथ
हमने ऑलरेडी निकाला है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, करेक्ट। x इंटू -1/14 cos 7x प्लस 1/6 cos 3x हो गया, माइनस इधर इंटीग्रेशन रहेगा, इधर भी वही आएगा, -1/14 cos 7x प्लस 1/6 cos 3x इंटू 1, डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक दिस इज डन, यही तो आंसर है। बस अब इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई -x/14 cos 7x प्लस x/6 cos 3x, माइनस माइनस बिकम्स प्लस 1/14 cos 7x का इंटीग्रेशन sin 7x अपॉन 7, माइनस प्लस बिकम्स माइनस 1/6 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस 6। बस कॉन्स्टेंट्स को अरेंज कर दो, तो आपका फाइनल आंसर होगा -x/14 cos 7x प्लस x/6 cos 3x okay, then here 14 sevens are 98, so 1 upon 98 sin 7x minus 1 upon 18 sin 3x plus c. This is your final answer. Have you all got it? कैसे किया हम लोग ने ये प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? Okay, so this is quite easy one only. बस उसमें हमने थोड़ा सा अलग से sin 2x को लेके सॉल्व किया। तो चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट से। Come on fast.
Okay, I think it's done now. Now moving to the next question. Question number 21. I think this is the last question of question number 1. Okay, तो देखते हैं इसको. Integration of cos of cube root of x. Can you all tell me how can we solve this problem? जैसे हमने cos root x का किया था, cos कुछ भी होगा other than linear, तो हम क्या करते थे, इस पूरे cube root of x को t करेंगे. Okay, I think it's very simple. You all can do it. Start doing it. चलो. Put cube root of x as t. इससे x क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट जाता है तो स्क्वायर लगता है, क्यूब रूट जाएगा तो क्यूब लग जाएगा. करेक्ट. एंड नाउ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. x का डेरिवेटिव 1, तो 1 dx equal to 3t square dt. So your dx will be replaced by 3t square dt. I think now the question becomes, ये तो t हो गया, तो ये cos t हो जाएगा और ये हो जाएगा 3t square dt. LIAT होता है ना, तो a पहले आता है, तो आई हैव टू जस्ट रीअरेंज. 3t स्क्वायर को साथ में लिया, अगर 3 को बाहर लेना है कांस्टेंट को तो बाहर ले लो, इट्स अप टू यू. और आप इसके अंदर u भी लगा के सॉल्व कर लो. कैन यू मैनेज दिस क्वेश्चन? टेक अ हिट, कम ऑन फास्ट. ओके, okay. So with this we have completed first question of 3.3. Now in second question there are around you can see 12 problems. So उसके अंदर थोड़े different types वाले भी रहेंगे. वो रूट वाले जो हमने फॉर्मूले किए थे वो यूज नहीं किया है. फिर लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक वाला टाइप था, वो सारे उसके अंदर यूज होंगे. So I think we will start that in the next class. Okay, so यहाँ तक अच्छे से practice कर लो. We will continue in the next lecture. Okay students, so that's all for today. Thank you very much.